Okay, ladies and gentlemen, very warm welcome to Express Adda with somebody who's made, I think, somebody who's spent so much time in politics now, starting from a mayor, leader of opposition, then CM, then deputy CM, interestingly, and now CM again. So it's been an incredible journey to watch, Devendraji, and we were so happy to have you with us. Thank you for coming. Thank you. It's absolute pleasure. So you just forgot that after CM, I became leader of opposition, and then deputy CM, and then again CM. But what a journey and what an incredible political comeback. Devendraji, what's changed? So tell, if I were to ask you, what's the one thing that you changed in your government today as CM compared to when it was your government as deputy CM? What's the one thing you changed in your government? See, today I am a more confident CM because I have already delivered. So now I know how to deliver. In 14, when uh, I started delivering, but even I was not confident that I will be able to deliver. Today I know how to deliver. Today I know what were my shortcomings between 14 and 19. So I'm a more confident person. I would say that I would deliver more in this term. Super, and more power to you. We want that. We want that from you. But we were all very pleasantly, I would say, impressed with your debut CM-ship. You were all pleasantly impressed. It was an incredible run you had. Um, so you're more confident as an administrator or as a vote getter? I think I'm more confident as an administrator because you see, uh, I would say that vote is a byproduct. If you are a good administrator and if you do right things, then there is a 90% chance that you will be voted back. 10% you cannot say anything in politics. And just to tell you that what is the difference you asked. So now I recognize one difference. In my tenure of 14 and 19, I was more focused on transformation in infrastructure, in some tangible things. But now my focus for 6 months, for 6 months, has been more on building the institution. So I first did a 100-day program. In the 100-day program, it was in a challenge mode. For 100 days, all the departments and all the offices, there are around 12,000 offices of government of Maharashtra in various districts, which are major offices. So they had to work on certain issues. The departments had to work on 900 points, and the offices on seven particular issues, which included grievance redressal, which included cleanliness. And I would say that in 100 days, they did work which they would not have done in 2 years. And I think out of those 900 points, more than 700 points were achieved. And so I threw again a 150-day challenge. Now, this 150-day challenge is more about institutionalizing the entire institution or the entire government. Just to tell you that I was going to the general administration department and I could see that there are 60,000 promotions pending. 60,000. And why they are pending? Because at the right time, the appraisal reports are not written. At the right time, all the things which you need to do to give a promotion, those sheets are not filled. Now, just imagine these 60,000 people who are not promoted, they have, no incentive because I am due for promotion and I am not been promoted for 5 years, 6 years, 7 years. Now, in this 150 days, will be totally transforming the general administration department. Everything will be digital. Everything will be on a single platform. Everything will be automated. And all these 60,000 people
who are due for promotion will get promotion in this 150 days. That is a difference I'm trying to make. And secondly, my focus in these 150 days is more on e-governance, because I've seen that we talk of e-governance, and in my last tenure also we did a lot of e-governance. We brought a lot of this government services online, but now I want end-to-end digital governance. So if anybody wants anything from the government, he should not visit government office. That should be available to him online. And we are also putting it on WhatsApp. We have now a MOU with Meta. So Meta is also providing a gateway, a payment gateway. So anything you require. So we will be providing around 1200 services of different departments end to end online, so that ultimately all of us know that technology is something which increases efficiency, which brings transparency, and it's also a leveler. So I think that this use of technology, which we could not, do it totally in my last 10 years, I wish to do it in this 150 days. So this is the speed at which I am trying to do in this regime. One of the things that e-governance talks about, ek to access, obviously access is a big part. The other thing is that avenues for corruption get significantly reduced. So recently, I interacted for an entire day with all the municipal commissioners and municipal council CEOs. So one thing I proposed, मैंने उनको ये कहा कि देखिए आप सब लोग, we all talk about जल्दी बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल देना चाहिए. We always talk, हम लोगों ने नई सिस्टम्स लाई, ऑनलाइन सिस्टम्स लाई, फिर भी जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इट हैज़ नॉट हैपेंड. मैंने उनको कहा कि अब मैं एक नया रूल बनाता हूँ कि हम जल्दी नई सिस्टम ऐसी लाएंगे कि जिस सिस्टम में आप कोई भी व्यक्ति अपना बिल्डिंग प्लान सबमिट करेगा और उसको जब वो बिल्डिंग प्लान व्हेन इट विल बी अप्रूव्ड, एट द टाइम ऑफ अप्रूवल ही विल आल्सो गेट अ रिसिप्ट, और उस रिसिप्ट में इट विल बी रिटन कि किसके पास कितने दिन वो रहा, किस टेबल पर वो गया और किसने कितने दिन उसको रखा. सो उसके कारण क्या होगा कि हु इज द कल्प्रिट, ये ध्यान में आएगा. तो फिर हर व्यक्ति ये प्रयास करेगा कि मेरे पास प्लान आए बराबर भाई दूसरे के पास जाना चाहिए, यानी वो खत्म होना चाहिए. तो ऐसी कुछ चीजें करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जिसके कारण we will be able to bring more transparency. And is corruption something which you feel there's a perception that the last 4-5 years it's not been Maharashtra's strongest there's a perception that corruption was becoming an issue. Would you agree? And do you think that's why you're taking e-governance? I would say why should I blame 4-5 years or these years or that years? Corruption has always been an issue, and we have to fight the corruption. It is sometimes more, sometimes it's less. And when common public, when they approach, the government offices for certain things to be done, and they are dragged because of corruption, I think there they feel the brunt. So corruption is an issue, and I feel that this issue can only be tackled by using technology. And it's not a more urgent issue today than it was 3-4 years ago. It's always urgent issue. You see, for me, it has always been urgent issue, and for everybody, it has to be an urgent issue, because ultimately, if there is no transparency, then I think your government cannot become efficient. देवेंद्र जी, अभी ये जो बारिश हुई थी जिससे मुंबई फिर एकदम रुक सा गया था, तो एक तो इसका वो है कि अर्बन सिस्टम्स हमारे जो है वो डिज़ाइन उनका ऐसा है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जब आती हैं, इस तरह की क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, उससे वो कोप नहीं कर पाते. पर दूसरा ये जो अभी आप बात कर रहे थे, करप्शन भी इसमें सामने आता है. वो इस तरह से कि क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिस तरह से जिस क्वालिटी का है, वो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन डेवलपमेंट की से आता है, नॉट पीपल ड्रिवन डेवलपमेंट. क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, दोनों चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार है.
पहली तो यह है कि अल्टीमेटली हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं तो उसका पिछले 20 साल में कितनी बारिश हुई है, हमारी एवरेज बारिश क्या है, और ज़्यादा बारिश के जो अकरेंसेस है वो उसकी सिविरिटी क्या है, इसके आधार पर। बट अभी क्लाइमेट चेंज के कारण प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे आपने परसों का इवेंट देखा, मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ है और सीधे 200 पानी आता है। तो ऐसे समय के लिए हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिज़ाइन नहीं है। दूसरा, जैसे मुंबई का अगर हम देखें तो मुंबई में करीब 8 मेजर पंपिंग स्टेशन, क्योंकि मुंबई एक आइलैंड सिटी है, एक ऐसा शहर है जहाँ पर जिस समय बहुत बारिश भी होती है और हाई टाइड होता है तो पानी जाने को जगह नहीं होती है, पानी पुश करना पड़ता है, क्योंकि पानी तो समुद्र में ही जाना है तो पुश करना पड़ता है, हाई टाइड उसको रोकता है। तो ऐसे समय पानी मुंबई में जमा होता है। इसके लिए मुंबई में करीब 8 हमने मेजर पंपिंग स्टेशन तैयार किए, 9 छोटे माइनर पंपिंग स्टेशन तैयार किए, 2 और पंपिंग स्टेशन तैयार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ बीएमसी ये जो बारिश का समय होता है इसमें करीब 450 पंप्स और लगाती है कि जो पानी को बाहर डालते हैं। अब टिपिकली इस बार जैसे बीएमसी हमेशा ये जो पंप्स चालू करती है 1 जून से शुरू करती है। अब कभी किसी को पता ही नहीं था कि 1 जून से पहले इतनी बारिश आएगी, तो अभी परसों इतनी बारिश आई। अब जैसे किंग सर्कल पे 6 पंप्स लगने थे, टेम्पररी पंप्स, 3 ही पंप लगे हुए थे, तो वहाँ पर पानी जाम हो गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स इसके हैं, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम से, हमारे डिज़ाइन के प्रॉब्लम से, क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम। लेकिन उसके साथ साथ इसमें करप्शन को भी डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोगों ने देखा है नाले सफाई में करप्शन। अभी हमारे पुलिस कमिश्नर यहाँ बैठे हुए हैं, अगर नाले सफाई के करप्शन की स्टोरी आप उनसे सुनेंगे तो आप उसके ऊपर एक फिल्म बना सकते हो कि क्या क्या आइडियाज लोग निकालते हैं। ट्रक की जगह स्कूटर कैसे दिखाते हैं, कैसे अगर आप कैमरा लगा रहे हो तो कैमरे को कैसे जाम करके, और ऐसा लगता है कि सब कुछ उठकर जा रहा है लेकिन उठ ही नहीं रहा है। ऐसे इतने नए नए आइडियाज लोगों ने निकाले हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हमने पुलिस को खुली छूट दी है कि आप कार्रवाई करिए, और ये कितने भी बड़े लोग हो उनको एक बार कानून की हवा ये जरा या हवालात जरा दिखाइए, तो मुझे लगता है कि उसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स थोड़े से धीरे धीरे समाप्त होंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी कुछ मुंबई का काम करना भी बाकी है, और हम लोगों को ये क्लाइमेट चेंज के बारे में भी थोड़ा विचार ये करना ही पड़ेगा। When we spoke about this, I wanted to come to this a little bit later and get into detail. But now that we're talking about it, I can't resist to just spend a little more time on it. Worli Metro, brand new. I mean, we're talking about corruption with Nala cleaning, but this is a much, it's much bigger. And 200 mm of rain, we're used to it, Devendraji. You were not prepared for it because it came early. But we have seen 200 mm of rain in June, so it becomes normal. So when it's that kind of, you've got such an incredible infrastructure sort of plan and executed. I mean, the coastal road, everybody who comes is in praise, metro, everything. Somewhere do you feel that we are getting the scale right, but somewhere quality is a problem? No, that's not right. Because since you have talked about the metro, now this underground metro has total 17 stations right now operational. Out of those 17 stations, it was totally operational on 16 stations. 16 स्टेशन पे कोई प्रॉब्लम उसका नहीं था। 17 स्टेशन जो हमने आधा उद्घाटन किया, आधा नहीं किया था, क्योंकि अगर उस स्टेशन का हम उद्घाटन नहीं करते तो हमको ये स्ट्रेच हम पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसका आधा उद्घाटन किया था। जहाँ उद्घाटन किया था वहाँ का प्रॉब्लम नहीं था, जो आधा उद्घाटन नहीं किया था, अभी दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम कि उनको जो वॉल कंप्लीट करनी थी वो 10 जून तक करनी थी, और उन्होंने एक बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि उस स्टेशन का काम मैंने उस दिन भी अनाउंस किया था, जिस दिन हमने उद्घाटन किया, कि इसका पूरा काम अगस्त में हम करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। सो बाय अगस्त वी हैड टू, तो जहाँ से हमने काम कंप्लीट नहीं किया था वहाँ से पूरा पानी अंदर आया। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ ये काम कंप्लीट होगा। उसके बाद जैसे ये 16 स्टेशन पर इतनी बारिश में 1 सेकंड के लिए भी मेट्रो नहीं रुकी, वैसे कहीं पर भी
ये मेट्रो नहीं रुकेगी, ये बहुत वर्ल्ड क्लास काम हुआ है, ये क्वालिटी का काम हुआ है। हाँ, ये एक्सीडेंट है कि काम मतलब इतने जल्दी बारिश आ गई और इतनी ज़्यादा आ गई, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। एक केवल बंड बना के रख दिया था, जो बंड इतनी बारिश को रोक नहीं सकता है। जैसे ही ये काम अगस्त में कंप्लीट होगा और जिस समय मैं आपको एश्योर करता हूँ, प्रधानमंत्री जी को लाकर जब इसका पूरा उद्घाटन हम करेंगे, उसके बाद ये कंप्लेंट यहाँ नहीं रहेगी। Fantastic. Very reassuring. Very, very reassuring. Good to hear. मुंबई बारिश की नहीं, करप्शन की बात अगर है तो उस पे मैं ये पूछूंगी आपसे। आप बहुत बेबाक पोजीशंस ले चुके हैं करप्शन के अगेंस्ट, आपने बहुत इसको अपना एक पॉलिटिक्स का एक इशू बनाया है, पर कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप पर्सनली करप्शन के बारे में जो आपने बोला है वो आज आपकी कैबिनेट में हैं, जैसे अजीत पवार हैं, छगन भुजबल हैं, और भी ऐसे 3-4 नाम हैं। तो ये कैसे हुआ और इसको आप कैसे निभाते हैं आज? ये रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में इन चीज़ों से मुंह मोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे बताइए कि अगर 2019 में पूरी मेजॉरिटी मिलने के बाद और अनाउंस होने के बाद कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस करने के बाद उद्धव जी ने हमको धोखा दिया, शिवसेना ने हमको धोखा दिया। तो उसके बाद पॉलिटिक्स में आप हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। ये ऐसी जगह है जहां रास्ता खोजना पड़ता है और जिंदा रहना पड़ता है। आप मर गए तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए हमने रास्ता खोजा। अब जो सही रास्ता था उस रास्ते से हमारे साथी भटके, तो फिर जिनको साथ में लेकर आगे बढ़ सकते थे उनको लेकर आगे बढ़े। तो इसलिए मैंने हमेशा अपनी राजनीति में ये बात को या ये इस प्रिंसिपल को मैंने हमेशा देखा है कि देखिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में आप जो साधन शुचिता है उसका पूरा पालन करें, अपने प्रिंसिपल्स का पालन करें, लेकिन जब आप राजनीति में काम करते हो तो कई बार जिंदा रहने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। उस समय आपको यह मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज सिर्फ मैंने जिंदा रहने के लिए किया है, दिस कैन नॉट बी माई वे ऑफ लाइफ। इसीलिए अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरे मंत्रिमंडल में कोई भी गलत काम करता है तो मैं करने नहीं दूंगा, मैं उसको रोकने का काम करूंगा। जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उसको और आज फॉर्चुनेटली मैं कहता हूं कि आप कोई भी मेरे मंत्रिमंडल का व्यक्ति देख लीजिए, वो कम से कम मेरी इतनी इज्जत तो करते हैं कि मुझे ओवर रूल करके कोई जा नहीं सकता। इसलिए मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारी जो सरकार है उस सरकार में हम करप्शन को रोकेंगे। और अगर होता है, मैं ऐसा नहीं कहता, हो भी सकता है किसी लेवल पर होगा भी, क्योंकि हमारे सिस्टम में करप्शन बहुत डीप रूटेड है, तो उसके ऊपर एक्शन लेने की भी हमारी तैयारी। And Devendra ji, this political opportunism which you are talking about, your political career, and I've seen it very closely because I've also joined Express formally around the time you came into Bombay, and so I've been seeing it. Has that changed? Is that something that's changed in politics compared to when you started off? That people are more opportunistic politically, or was it always this way? I think it was always like this. देखिए, बीच में ये साइकिल है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको कि आप अगर महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स देखेंगे तो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में 1978 में शरद पवार जी ने एक सरकार तैयार की थी। वो सरकार ऐसे ही तैयार हुई थी। उसके बाद आप अगर महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में 1992 देखेंगे तो उस समय शरद पवार जी की सरकार के पास बहुमत नहीं था, लोग थोड़े कम थे, तो उन्होंने शिवसेना को तोड़कर, उस समय छगन भुजबल जी उनके साथ गए थे और शिवसेना को तोड़कर उन्होंने अपनी एक सरकार तैयार की थी। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा होते आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी जो राजनीतिक मूल्य है उनका अवमूल्यन हुआ है और हमको ये मानना ही पड़ेगा, और इसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा विचार भी करना पड़ेगा।
देवेंद्र जी जैसे चेंज की बात कर रहे हैं, तो एक और चेंज जो जो आपको क्लोजली देखते हैं उनको लगता है आपके अंदर एक चेंज आया है, वो ये कि आप शुरू में जो आपका छवि था वो बहुत डेवलपमेंट ओरिएंटेड था एकदम, अभी भी है डेवलपमेंट ओरिएंटेड, पर उसमें एक चीज़ आपने ऐड किया है और वो एक है एक तरीके का हार्ड या हार्श लैंग्वेज कहा जाए, जिसमें जैसे लव जिहाद हुआ, जिस इसके बारे में आपने बात करनी शुरू की। फिर ये जो लव जिहाद कमेटी भी आई थिंक आपने बिठाई है अभी, और ये एक जैसे होड़ सी है जिसमें आप भी ज्वाइन कर गए हैं। ये एक योगी जी हैं, एक हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, यहाँ पे आप भी उस तरह की इश्यूज को ज़्यादा उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर फैक्चुअल इश्यूज है तो उस पर बात करनी पड़ेगी। हमारे देश में फैक्चुअल इश्यूज को अगर हम कारपेट के नीचे दबाएंगे तो एक दिन उसका विस्फोट होगा। मैं भी एक समय ये मानता था कि भाई ये जिस प्रकार की बातें होती है लव जिहाद की वगैरह, ये शायद थोड़ा एग्जेजरेशन है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और मैंने खुद इसका एक स्टडी करवाया, इट्स नॉट ऑफिशियल स्टडी, पर तो कई जिलों में मुझे ध्यान में आया कि इट इज़ अ फैक्ट कि लड़कियों को, देखिए अंतर जाति कोई या अंतर धर्मीय विवाह करता है उससे मुझे कोई परहेज नहीं है, आई हैव नो प्रॉब्लम। देयर कैन बी इंटरकास्ट मैरिजेस, देयर कैन बी इंटरफेथ मैरिजेस, दैट्स एब्सोल्युटली गुड। पर जब ऐसी चीज़ें बढ़ने लगी कि लड़कियों के साथ विवाह करना और आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बिना या गलत आइडेंटिटी, फोर्स्ड आइडेंटिटी पर विवाह करना, फिर उस लड़की को बच्चा होने के बाद छोड़ देना, ऐसी एक आधी घटना नहीं, ऐसी जब हजारों घटनाएं दिखने लगी तब ये ध्यान में आया कि देयर इज अ डिजाइन बिहाइंड इट, और उसके बाद मैंने बात करना शुरू किया। सो ये मेरे लिए कोई वोट का मुद्दा नहीं है, इट्स नॉट नथिंग अबाउट वोट, लव जिहाद वगैरह, इससे कोई मुझे पोलराइजेशन करना है, मुझे वोट चाहिए, ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है। ये फैक्ट है, ये हो रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि हमारे देश में, और मैं किसी धर्म या जाति विशेष को इसमें कॉर्नर भी नहीं करना चाहता, पर एक डिज़ाइन तो हमारे देश में ऐसा दिखाई पड़ता है, विशेष रूप से कई प्रकार के देश को कमज़ोर करने वाली जो ताकतें हैं उनका डिज़ाइन अलग अलग प्रकार से दिखाई पड़ता है, जिसमें हमारे देश में माइनॉरिटीज़ को रेडिकलाइज करना। आज मुझे बताइए कि अगर हम रेडिकलाइजेशन के खिलाफ नहीं बोलेंगे और हम ये बोलेंगे कि आप पोलराइज कर रहे हैं, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि फिर इतने सारे हमारे यहाँ के लड़के आईसिस क्यों चले गए? इतना बड़ा नंबर है आईसिस जाने वालों का। तो अगर हम लोग ये बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई आप ये जरा रेडिकलाइजेशन के बारे में मत बोलिए क्योंकि ये तो हार्डकोर बात आप लोग कर रहे हैं और आप पोलराइज करने का, देखिए जो फैक्ट है उस फैक्ट को हमको स्वीकारना पड़ेगा। इसीलिए लव जिहाद ये आज फैक्चुअली होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो हमको उसको रोकना पड़ेगा। जो गलत काम कर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी के घर की बच्ची इसमें प्रताड़ित हो रही है और एक डिजाइन के साथ प्रताड़ित हो रही है। इसलिए मैं ये बात करता हूं और करूंगा। आपको लगता नहीं है कि इसका मिसयूज भी बहुत हो सकता है? जैसे एक और अब बात आपने बोली थी, ये दिस वाज आई थिंक लोकसभा चुनाव के बाद आपने बोला था कि इट वाज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन फोर्सेस ऑफ एनार्की एंड फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म। आपने बोला था ये पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये फोर्सेस ऑफ एनार्की एंड फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म। नाउ अगर आप पूरी ऑपोजिशन को फोर्सेस ऑफ एनार्की का लेबल दे देते हैं, तो डज दैट नॉट disrespect the opposition first of all, and also आप अपनी तरफ से आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी खाली नहीं, हम फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म उतारना चाह रहे हैं उनको फाइट करने के लिए, तो आप अपने आप को भी कम कर रहे हैं। कि पहली बात तो यह है कि हमारा अपोजिशन हमसे लड़े, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन वो है कहाँ? वो नहीं लड़ रहा है। आप देखिए, अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो हमारे खिलाफ कौन लड़ा? भारत जोड़ो नाम का एक संगठन राहुल गांधी ने तैयार किया था। इसमें 180 संगठनाएं थी, 180, और उसमें से मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने ऐसी संगठनाएं गिनाई है
जिन संगठनों को जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, या जिसको आजकल की भाषा में हम लोग अर्बन माओइस्ट कहते हैं, उनको अर्बन माओइस्ट के रूप में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने घोषित किया, लोकसभा में उनकी लिस्ट जारी की। उस लिस्ट की संगठनाएं भारत जोड़ो के रूप में अगर हमारे खिलाफ लड़ाई करती है, कांग्रेस में दम ही नहीं था, वो कोई लड़ नहीं सकते थे हमसे। ये 180 संगठनाएं जो एक साथ आई, इन्होंने इसलिए मैं इनको अनार्किस्ट फोर्सेस बोलता हूँ, ये अर्बन माओइस्ट है। इन्होंने जिस प्रकार की एक भावना यहाँ तैयार की, ठीक है, दो चीजें। अब मैं मेरे दूसरे बात पर आता हूं, जिसके ऊपर शायद आप आगे पूछ सकती है, कि लव जिहाद के साथ साथ एक वोट जिहाद हमने देखा। ये वोट जिहाद अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में किस प्रकार का मतदान हुआ, तो आपके ध्यान में आएगा। अगर आप वोटिंग का पैटर्न महाराष्ट्र का सामने लाकर दिखाए, तो देखिए कि जहां माइनॉरिटीज है, वहां पर जिस प्रकार का बिल्कुल पोलराइज वोटिंग हुआ है, वो वोट जिहाद था। वो किसने किया? एनार्किस्ट फोर्सेस ने किया। इसलिए मैंने ये कहा था कि पार्टियों से लड़ने की तो हमको आदत है, कांग्रेस आ जाए, एनसीपी आ जाए और कोई आ जाए, हमको इसकी आदत है। लेकिन फोर्सेस से लड़ने की हमारी आदत नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम पार्टियों से लड़ने के लिए तैयार हुए। फोर्सेस से लड़ना है तो फोर्सेस को लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने नेशनलिस्ट फोर्सेस को कहा कि देखिए, एनार्किस्ट फोर्सेस नीचे जाकर लोगों के मन में भ्रम फैलाकर लोकसभा के चुनाव में उनको भ्रमित करके वोटिंग करवा रहे हैं, तो इनको जवाब आपको देना पड़ेगा। और नेशनलिस्ट फोर्सेस उतरे, और नेशनलिस्ट फोर्सेस ने जब एनार्किस्ट फोर्सेस का जवाब दिया, तो लोगों ने नेशनलिस्ट फोर्सेस को चुना। हमको ऐसी मेजॉरिटी दी कि महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक किसी पार्टी को जो मेजॉरिटी नहीं मिली, वो लोगों ने हमको दी। नेशनलिस्ट फोर्सेस माने आरएसएस? आरएसएस है, और भी बहुत है। आरएसएस अकेला नहीं है, आरएसएस तो है ही नेशनलिस्ट फोर्स, और कई नेशनलिस्ट फोर्सेस है, उन सबको हमने एकत्रित किया। I'm going to change gears a little bit. If the national politics piece is through, Devendra ji, yeah, go ahead, please, please. So इतना जो आप बोल रहे हैं एनार्किस्ट फोर्सेस और लव जिहाद और ये सब, पुणे में 19 साल की लड़की को अरेस्ट किया जाता है और कॉलेज उसको रस्टिकेट कर देता है। एक फेसबुक पोस्ट, ऑनलाइन पोस्ट उसने किया था, तो उसके ऊपर कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपकी पुलिस को अच्छे से फटकार मारी है। मतलब उन्होंने बोला है कि ये शॉकिंग है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और उस लड़की की पूरे करियर के साथ खेलने की बात है ये। तो आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, पुलिस कई बार एक्शन लेती है, उनमें से कुछ एक्शन कोर्ट को ऐसा लगता है कि ज़्यादा हुई है, तो कोर्ट फटकारता है, तो उसमें से हम लोग सुधरते हैं। हम लोग सोचते हैं ठीक है, अगली बार इतने एक्शन नहीं लेंगे। बट देखिए, पुलिस के एक्शन तो एंटायरली गलत नहीं है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ऐसे समय वो लड़की हमारे सेना के खिलाफ लिखे या पाकिस्तान के फेवर में लिखे, तो एक जनभावना भी तो विरोध में तैयार होती है, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। अब ये एक्शन कम है या ज़्यादा है, ये कोर्ट तय करता है। अब कोर्ट को लगा ज़्यादा है तो मान लेंगे ज़्यादा है, अगले बार सुधार लेंगे। Devendra ji, the one thing, because you said this, the one thing where you sort of, you know, I feel like your loyalty to your alliance, you know, won the battle in your mind between I know your love for free speech. I mean, I understand that, was in this whole comedian situation where there was an attack on is that also something you feel like, you know, you had to sort of be more, you know, you had to show your friendship to your alliance partner more than you wanted to? देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे तो पॉलिटिकली ऐसे लोगों को इग्नोर करना ज्यादा ठीक होता है। करेक्ट। इनकी औकात नहीं है, आप इनकी औकात बढ़ा देते हो। एग्जैक्टली। इतनी औकात बढ़ाने की जरूरत नहीं। सो पॉलिटिकली इट इज बेटर टू इग्नोर। बट कई बार क्या होता है कि विशेष रूप से हमारी पार्टी भी या हमारे एलाइज भी, नॉट ऑल एलाइज, शिवसेना और हम लोग थोड़े भावनिक लोग हैं। हम लोग प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस नहीं है। हमारे में इमोशन थोड़ी ज़्यादा है, तो वो इमोशन कभी कभी थोड़ा हमको रिएक्ट करवाती है। तो इसलिए मेरा अपना मत आप पूछेंगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि
थोड़ा रिएक्शन के कारण उनको ज़्यादा तवज्जो मिली। Correct. 4 आदमी सुनते नहीं उनको। Correct. Okay. Super. Okay, Devendraji, we have seen a complete transformation in Mumbai in the last, after Coastal Road, the metro, and all these exciting things. So I want to take you there a little bit. I want to play a short game with you because everybody's interested in the changing face of Mumbai. So I will say an infra project, and I will ask you to please give us some sense of an update on the project. Where is it, and why is it important, do you think? As short and whatever you want to say about the particular project, you can say. So, the Mumbai Metro. So I think Mumbai Metro is something which will change the entire mobility in Mumbai. And when I talk about Mumbai, it's not just Mumbai, it's about MMR. So the entire metro network which we are creating in MMR, and now the best thing is that we have already enacted UMTA, which is a Unified Metropolitan Transport Authority. Yeah. So for entire Mumbai metropolitan region, there will be one authority. All the transportation systems of Mumbai will One be on card. single platform. It will be on one card. So we have already rolled out this single card. Right now in Mumbai, it's under trial. It is successful. And in 6 months, we'll roll it out in MMR region. So the idea behind it is that when you offer end-to-end solution vis-a-vis public transport, then people tend to use public transport. So our plan is that, at let's say 200 meters or 300 meters, anybody should get at least one mode of public transport, and he should get entire travel plan. His destination should be available to be reached by a public transport. That facility we are giving. But that facility will be totally available once we complete the metro network. So, by when? By when So the metro? I'll tell you that this year 60 kilometers, next year 60 kilometers, then another year 50 kilometers, and then 50 kilometers. So, you'll take 4 years to complete the Yeah, metro yeah, project. yeah. Okay. And then let me remind you that we are also taking new lines. That will again require 4 years. So this year and next year we are also, but around let's say 300 kilometers or 272 kilometers of the network which we started when I was Chief Minister, we'll be finishing that. The Navi Mumbai Airport. Navi Mumbai Airport is almost complete, and by August, I think we'll be able to open the Navi Mumbai Airport. Now, again, in next 3 to 4 months, we'll also be completing the coastal road which joins Atal Setu to the Mumbai Airport, New Mumbai Airport. So, reaching the New Mumbai Airport will be very easy. And we are also constructing now a elevated road from Thane to New Mumbai Airport. And we are also constructing a metro from the Chhatrapati Shivaji Maharaj Airport to New Mumbai Airport. So that metro will take at least 5 years. This coastal road will take, this elevated road will take 4 years. But the airport will start by August, and in next 6 months, the coastal road will be ready. Fantastic. And this idea of Naina, this thing you brought up, which is also my daughter's name, by the way, so I really like Really? it. But will be, how long before Naina becomes a reality? So I think we have already rolled out Naina, and its first IDP was actually cleared when I was the Chief Minister in my last regime. Now the second IDP is almost it's clear, and we'll be rolling it out. And we have already started building it. So I think this new city Naina, where certain thematic cities are coming. Like I would like to tell you that we have planned a Edu city there. Now this Edu city is a city where we would like to host at least 12 foreign universities. And out of that, 5 foreign universities will get LOI from the central government in this month itself, or maybe by early June. So we'll have a program in Mumbai where we'll give them this LOI, and they are best ranking universities. They are amongst first 50 or first 100 ranking universities who will be setting up their campus. So in this Edu city, we feel that we'll be hosting at least 100,000 students. We are also creating a Medicity. We are creating a sports city. We are creating
a knowledge city. This is all in Naina. Yeah. We are creating a innovation city. So there are many thematic cities which are coming up in Naina. And apart from that, it's a model where various people who are landholders or who have gathered the land, they will also come up with their own ideas of cities, and will be providing them the infrastructure. Is there anything that will shift from Bombay? Your Mantralay, High Court, all these things that we keep talking about. Because movement. High Court is now shifting to Bandra. So this and Mantralay we don't intend to shift, because now that the new Mumbai and Mantralay are coming very closer, because because of Atal Setu, it's there. From Atal Setu now we are actually building one tunnel which will directly connect us to the coastal road. So the entire loop is getting created. So whenever you come from the Eastern Freeway, normally from Eastern Freeway to CST station, it's it's a lot of traffic. Yeah. Now with this tunnel, it will be a matter of 4 minutes to reach Chowpatty. So I think that this Mantralay can serve even the new city which is which we are creating in New Mumbai. Yes, but I have a plan to make a new Mantralay. So in fact, we have decided that this entire Mantralay and the bungalows in front of Mantralay, Rajya Mantri bungalows, up to our Vidhan Bhavan, we want to make a new precinct in this entire area. That's news to me. Yeah. I mean, I've been hearing about it, and I've been hearing about it for many years, but you're actually going to implement all those we will MLA do- bungalows and. Yeah. No, it's not just MLA bungalows, because MLAs don't need bungalow, but I mean, those yeah, bungalows on that but road. entire, today even in this Mantralay, we are not able to host all our offices. Our at least 100 offices are there located elsewhere in Mumbai. We want to bring them all, and also we want to create a administrative district. And the Vidhan Sabha will stay. Yeah, it as will be is. there. That's not going to change. Okay. You mentioned elevated road and tunnel. उस पे भी थोड़ा controversy हो रही है अभी. There's a tendering. There was an issue. Supreme Court took it up. Anything you want to say about that? No, I think अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है, तो बेसिकली द प्रॉब्लम ऐसा था, ये एक्चुअली हमारे चुनाव से पहले ही ये टेंडर हो गया था, और उस टेंडर में 2 लोग compete कर रहे थे, उसमें L&T भी थी, और L&T पर ये ऑब्जेक्शन आया था. L&T इज अ गुड कंपनी है, आई मीन दे आर बिट गुड, बट उसमें एक उनके ऊपर ऑब्जेक्शन ऐसा आया था कि उन्होंने जो तेलंगाना में काम किया था उसमें कुछ क्रैक्स आई थी. सो यहाँ के जो नियम थे MMRDA के, उसके अनुसार उनका टेंडर खोला नहीं जा सकता था, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो रहे थे. उसके अगेंस्ट वो कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि भाई ये प्राइस डिफरेंस बहुत है, तो हम लोग कोर्ट जो कहेगा करेंगे. यानी इट्स अ मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर. मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम आएगा. Okay, super. Waterways and water taxis. This again, since I was a child, and asking Girish ji, Girish के बारे में से मैं बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ कि water taxi होगी बॉम्बे में. देखिए, आप बचपन से जो सुनते थे उसमें से पहली चीज तो हमने करके दिखाई, रोरो तो हमने शुरू की. Correct. सो 2019 में हमने रोरो शुरू कर दी, और रोरो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है. Correct. अभी वाटर टैक्सीज के लिए हम लोग एक बहुत अच्छी जेटी रेडियो क्लब के पास बना रहे हैं. थोड़ा हमारे साउथ बॉम्बे के लोगों का उसको विरोध है, लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ पर शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे जो हम लोग ये अपना जो ईस्टर्न साइड का पूरा BPT का जो डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलप करते हुए फिर धीरे धीरे उसको शिफ्ट भी वहाँ पर करेंगे. सो वी इंटेंड टू स्टार्ट द जो अपनी वाटर टैक्सी है उसको हम शुरू कर रहे हैं. और द गुड न्यूज़ इज, वाटर टैक्सी शुरू करने से पहले ही हम लोगों ने जो सिंगल टिकट है उसके ऊपर वाटर टैक्सी को लाकर रख दिया है. सो जब वाटर टैक्सी आएगी, तो जिस टिकट पर आप रेलवे में, उसी टिकट पर आप मेट्रो में, उसी टिकट पर आप मोनो में, उसी टिकट पर आप बस में, और उसी टिकट पर आप वाटर टैक्सी में भी ट्रैवल कर पाएंगे. Fantastic. Okay. The Mumbai local train upgrade. कि Yeah, मुंबई, last month Ashwini ji was in हाँ जी, Bombay giving a, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से अपग्रेडेशन हुआ भी है और हो भी रहा है. आप देख सकते हैं कि स्टेशंस का अपग्रेडेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है. but we need more trains. I mean, the people are falling अभी out. पहले तो मैं पैसेंजर एमिनिटीज के बारे में बोल देता हूँ कि पैसेंजर एमिनिटीज ये बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने बढ़ाई हुई है.
आज एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, आप स्टेशन की सफाई देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसेंजर एमिनिटीज़ को ध्यान उसके ऊपर दिया गया है। और ट्रेन्स भी बढ़ाई गई है, ट्रेन्स की सफाई भी ठीक की गई है, नए प्रकार के ट्रेन्स भी आ रही है। और हम लोगों ने एसी ट्रेन्स इंट्रोड्यूस की थी, अभी भी की हुई है। थोड़ा लोगों का कहना है कि आपने उसका किराया ज़्यादा रखा है, तो हमने अभी अश्विनी जी को ये कहा है कि आप सारी ट्रेन्स एसी कर दीजिए और जो नॉन एसी ट्रेन का किराया है वही किराए पर आप कीजिए। तो उसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं, शायद वो उसको मंजूर करेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अ, आज आप मेट्रो लोगों को इतनी अच्छी दे रहे हो, और देखिए हमारे 90 लाख लोग सबअर्बन रेलवे से ट्रैवल करते हैं और 70 लाख लोग मेट्रो से ट्रैवल करेंगे। मतलब हम एक प्रकार से दुगनी कर रहे हैं, जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी हम दुगनी कर रहे हैं। लेकिन एक और मेट्रो में लोग अच्छा प्रवास करें और हमारी लोकल ट्रेन में धक्के खाए और मुंबई की सारी इसमें वो करे, तो इसलिए हमको लगता है कि उसका भी अपग्रेडेशन होना चाहिए। और मोस्टली अश्विनी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम मुंबई को आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ट्रेन देंगे। The Virar Alibag corridor. By when will it be done? हाँ, विरार अलीबाग कॉरिडोर का हम लोगों का प्रयास है कि इसी साल हम उसको शुरू करें। उसमें बेसिकली क्या है कि इस कॉरिडोर को बनाने के लिए जो लैंड एक्विजिशन कर दी है, द लैंड एक्विजिशन कॉस्ट इज 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ का लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है। तो नॉर्मली क्या होता है कि लैंड एक्विजिशन के लिए कोई बैंक्स पैसा देती नहीं है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा समृद्धि का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद पहली बार कोई बैंक्स तैयार हुई है और वो हमको इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए देने को तैयार है। तो अभी हमारा जॉइंट मेजरमेंट लास्ट स्टेज पर है। ये जॉइंट मेजरमेंट होने के बाद हम लोग लैंड एक्वायर करेंगे और फिर इसका काम शुरू करेंगे। Goregaon Mulund? उसका भी करीब करीब काम जो है वो शुरू कर चुके हैं। Okay. Concretizing Mumbai's roads. ये प्लान का आपका देखिए बहुत अच्छा प्लान है, और मैं हमारे मुख्यमंत्री तब के और आज के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, इनको बधाई दूंगा कि एक बहुत अच्छा प्लान उनके काल में रोल आउट हुआ। क्योंकि मुंबई में इतनी ज़्यादा बारिश होती है, पानी भी रुकता है, तो मुंबई में हमारे जो ये सारे बिटुमिन के रोड्स है, ये 3 साल से ज़्यादा टिक नहीं सकते। इसलिए मतलब खबरें तो आपको मिल जाती है उससे कि यहाँ गड्ढा पड़ा है, वहाँ गड्ढा पड़ा है। मैंने 2014 के बाद गडकरी जी ने और मैंने नागपुर में तय किया कि हम लोग मेजर रोड्स का कॉन्क्रीटाइजेशन करेंगे, और आज आप देखिए कि खड्डे की समस्या से हम मुक्त हो गए। इसलिए मुंबई में भी उसकी आवश्यकता थी। मुंबई में ट्रैफिक की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर एक खड्डे से, एक गड्ढे से ट्रैफिक स्लो हो जाता है और उसका इफेक्ट 10,000 गाड़ियों पर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कंक्रीट रोड करना जरूरी था। Is there a time by which we over? We complete. हाँ, You will say उसका फर्स्ट फेज जो है, ये फर्स्ट फेज का काम अभी करीब 78% हो गया है। सेकंड फेज का काम 35% हुआ है। फर्स्ट फेज अभी जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब इस मानसून के बाद जो काम का पीरियड मिलेगा उसमें फर्स्ट फेज ओवर हो जाएगा। अगले साल के एंड तक सेकंड फेज पूरा करने का प्रयास है। Okay, the Vadhavan port. आई थिंक दैट हैज़ बीन अ गेम चेंजर। और मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए कि हमारे देश का मेजर पोर्ट इज JNPT पोर्ट। JNPT पोर्ट अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ आवर कंटेनर ट्रैफिक। अभी वाडभन जो पोर्ट है इज 3 टाइम्स बिगर देन JNPT पोर्ट। तो ये देश को एक मैरीटाइम ताकत के रूप में विकसित करने वाला है। और वाडभन का जो पोर्ट है, इसमें 20 मीटर्स डीप ड्राफ्ट है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी वेसल्स जो आज JNPT पे नहीं आ सकती, वो वाडभन पे आ सकती है। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको 90s में कंसीव किया गया था, और 90s में करने के बाद पीपल वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड अ कमिटी। देयर वाज अ ढाणू नेचर कंजर्वेशन कमिटी अंडर गाइडेंस ऑफ हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, इट वाज अपॉइंटेड, और उन्होंने उसको खत्म कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हो नहीं सकता, बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं है। सो व्हेन आई बिकम अ चीफ मिनिस्टर, तो मैंने उसका थोड़ा स्टडी किया, तो मेरे ध्यान में आया कि हमारा राइट ऑफ वे जो है ये ढाणू नेचुरल एरिया से जाता है। अगर हम राइट ऑफ वे नया ढूंढ ले तो हमको ढाणू नेचुरल एरिया की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमको इस कमिटी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम नेचर का कोई विनाश ही नहीं कर रहे।
तो हम लोगों ने प्रयास करके 2017 में नया राइट ऑफ वे ढूंढा। वो नया राइट ऑफ वे हमने थोड़ा डीप सी से ढूंढ के निकाला। उस नए राइट ऑफ वे को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दी, फिर कमिटी के पास वापस गए, सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमिटी ने उसको मान्यता दी, और अब ढाणू पोर्ट हम लोग तैयार करें, उसका काम शुरू हो गया है। मुझे लगता है अगले 2 साल में हम लोग उसका एक पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने प्रधानमंत्री जी को ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी, हम ढाणू पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, पहले महाराष्ट्र का पोर्ट हुआ करता था, लेकिन इसका साइज और सारी चीजें देखने के बाद हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जॉइंट कंपनी कर ली, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिलाकर ये पोर्ट हो रहा है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया कि हम जब पोर्ट के लिए रिक्लेमेशन कर रहे हैं, तो आज दुनिया के सारे अच्छे एयरपोर्ट ये रिक्लेम्ड एयरपोर्ट है। आप नरीटा का एयरपोर्ट देखिए, हांगकांग का एयरपोर्ट, सारे। तो इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि हम लोग यहाँ पर मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट तैयार करें, हम रिक्लेमेशन करें, थोड़ा ज़्यादा रिक्लेमेशन करें। और प्रधानमंत्री जी ने उसको मान्यता दे दी। हमने महाराष्ट्र सरकार की ओर से अभी एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया है, तो आने वाले 4-5 वर्षों में मुंबई का तीसरा एयरपोर्ट ये वाढवण पोर्ट के बाजू हम तैयार करेंगे। Okay, Dharavi rehabilitation. कि मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग नए सिटीज की बात करते हैं, और नई सिटी करना बड़ा आसान है। व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट इज अर्बन रिजुविनेशन। और धारावी ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन रिजुविनेशन का प्रकल्प तैयार होने वाला है। और जिस प्रकार से उसको प्लान किया गया, देखिए धारावी में करीब 8 लाख लोग रहते हैं, और इन 8 लाख लोगों में 50% लोग ये इन एलिजिबल है। मतलब जो हमारी एलिजिबिलिटी की डेफिनेशन है स्लम की, उसमें इन एलिजिबल है। बट ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें यह तय हुआ, जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने तय किया कि 4 लाख लोगों को इन एलिजिबल ठहरा के हम बाहर निकालेंगे, नया स्लम तैयार करेंगे। फायदा नहीं है। ऐसा प्रोजेक्ट करते समय सबको एलिजिबल करना पड़ेगा। तो ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें एवरीबडी इज एलिजिबल। जो इन एलिजिबल है इनको हम रेंटल हाउसिंग दे रहे हैं उसी क्वालिटी का। हेलो, 12 साल उन्होंने रेंट देने के बाद वो उसके मालिक बनेंगे। अभी इसका जो डिजाइन तैयार किया है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल डिजाइन। ये एक मुंबई का, देखिए मुंबई का तो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बीकेसी है, बट दिस विल बी अ न्यू बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि धारावी में हमारे बेस्ट वर्कफोर्स हमारा धारावी में बसता है। इतने स्किल्ड लोग हैं। धारावी एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, धारावी से चीजें एक्सपोर्ट होती है। धारावी का लेदर, धारावी की पॉटरी, धारावी की फूड। तो कुल धारावी में 19,000 बिजनेसेस बसते हैं। हम लोगों ने तय किया कि ये 19,000 लोगों को हम यही बसाएंगे, वहीं पर उनके लिए इकोसिस्टम तैयार करेंगे। बिकॉज बेस्ट वर्कमैन विथ वर्स्ट इकोसिस्टम, ये मुंबई और देश को कैटर कर रहे हैं। और उस समय मैंने ये भी निर्णय किया था कि चूंकि इनको इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में ला रहे हैं, इनको अच्छी जगह भी देंगे और 5 साल टैक्स हॉलिडे भी देंगे। तो इसलिए वहां पर इन सबको हम जगह देंगे। अभी अगर हम धारावी की बात करेंगे तो करीब धारावी में ये जो पूरा धारावी है, ये 251 हेक्टेयर की जगह है। इस 251 हेक्टेयर में 108 हेक्टेयर जगह ऐसी है कि जो बिल्डेबल रहेगी। बाकी जगह जो है या तो मैंग्रोव्स है, या सीआरजेड है, या रेलवे का कोई उसके ऊपर है, या कोई एयरपोर्ट का उसके ऊपर रिजर्वेशन है, या फिर कुछ रोड्स में जाएगी, पब्लिक प्लेसेस पे जाएगी, गार्डन्स में जाएगी। ये भी जो 108 हेक्टेयर पे जो बनेगा, इसमें 43% रिहैब और 43% इज सेलेबल, ये रेशियो रखा हुआ है। और बचा हुआ जो कंपलसरी जो कॉरपोरेशन को हैंडओवर करना पड़ता है, ऐसी सारी चीजें उसके अंडर रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कुल धारावी का एक नक्शा देखेंगे तो इट इज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और जिन लोगों के जीवन में उन्होंने कभी विचार नहीं किया होगा, इतनी अनहाइजीनिक जगह पर लोग रहते थे, उनको मोस्ट हाइजीनिक इस प्रकार से रखा जा रहा है। और सबसे बड़ा इसका डिजाइन एलिमेंट क्या है?
गरीबों को अमीरों से सेपरेट नहीं किया है, इसके डिजाइन को मिक्स डिजाइन के रूप में तैयार किया हुआ है। सभी पब्लिक स्पेसेस ये रिहैब वालों को भी एक्सेसिबल है और सेल वालों को भी एक्सेसिबल है। तो एक्सेसिबिलिटी ये इसका एक मेजर बेंचमार्क है। और धारावी एक ऐसी जगह है कि जहां पर आप देखेंगे तो वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, वेस्ट के 2 डेपो, तो एक प्रकार से धारावी ये ट्रांसपोर्ट हब भी है। अब हम लोग अंडरग्राउंड मेट्रो को भी वहां जोड़ रहे हैं। मतलब जिस समय हम लोगों ने ये बुलेट ट्रेन तैयार की, उस समय मैंने कहा था कि बीकेसी में बुलेट ट्रेन को लाने की जगह क्या हम धारावी के नीचे ला सकते हैं। उस समय वो हो नहीं पाया, पर अब पूरा ट्रांसपोर्टेशन का हब भी हम लोग वहां तैयार कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगले 7 सालों में, और ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग, मतलब धारावी का काम ऑलरेडी चालू हो गया, क्योंकि हम लोगों ने रेलवे से जगह खरीद ली थी, उस जगह पर हमने चालू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि दुनिया के लोग धारावी रीडेवलपमेंट को एक मॉडल मानेंगे। इस प्रकार से इसका प्लानिंग हमने किया है। Devendraji, you still have faith in the SRA system, because so far we hear people, they get the flat, they sell it, they still remain there. You know, there are a lot of issues with SRA. I mean, you overall you have faith that this will be executed smoothly. Yeah, I have a lot of faith. See, so far as Dharavi is concerned, Dharavi is different from SRA because we have created a special purpose vehicle in Dharavi, that is DRP we call it. So it is Dharavi Redevelopment Authority and project, and this authority owns the entire Dharavi, and they are transforming it. However, so far as SRA is concerned, you are absolutely right, because there was a time, let's say between 2004 to 2012, in which this SRA was totally misused. एक प्रकार से LOI ट्रेडिंग का स्कैम बन गया था। मतलब झोपड़पट्टी वालों के कंसेंट लेना, उस पर एक LOI ले लेना, और फिर मैंने आपको बेचना, आपने इनको बेचना, इन्होंने मुझे बेचना, उन्होंने दूसरे को बेचना, घर बनते ही नहीं थे। अभी हम लोगों ने उसमें ध्यान देकर, और ऐसे जितने प्रपोजल थे उनको, और उसमें अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या थी कि LOI ट्रेड होता था और बैंकों को भी डिफ्रॉड किया जाता था। ये LOI दिखाकर कितने लोगों ने हजारों करोड़ रुपए बैंकों से उठा लिए। गरीबों को घर भी नहीं है, रिहैब भी नहीं है, कुछ भी नहीं बना है। तो अभी उसको हम लोग सीधा करते हुए आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस प्रकार के नियम हमने तैयार किए, तो हम SRA को बहुत सुधार चुके हैं और सुधारेंगे। Dharavi ke while the building comes up and all becomes formal, there are 2 places they seem to be going to. One is Deonar and one is the salt salt pans. Both, one is an environmental issue, one is a health issue. So is there a thought around how this will happen? धारावी के जो एलिजिबल लोग हैं उनमें से कोई बाहर नहीं जा रहा है Temporarily? वो नहीं, टेम्पररी भी नहीं, वो सारे धारावी में रहेंगे। हम लोग एक एक सेक्शन में उसका काम करेंगे। ये जो बाहर की जगह हमने दी हुई है वो इन एलिजिबल लोगों के लिए ली हुई है, उनको भी और बहुत क्वालिटी के मकान बनाएंगे। जहां तक सॉल्ट पैन का सवाल है, आप देख सकते हैं कि वहाँ सॉल्ट पैन का काम होता नहीं है, और अभी ये सारी जगह पर या तो झोपड़पट्टियां बैठ रही है या यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। इसलिए ये सॉल्ट पैन के लैंड्स को हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन के लिए दिया है, ताकि वहाँ पर ठीक ढंग से हाउसिंग हो पाए, और उसका सारा हमने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस किया है। इट इज टोटली सस्टेनेबल, कोई भी उसमें अनसस्टेनेबिलिटी नहीं है। It won't risk more flooding. No, not at all, क्योंकि उसके आगे और पीछे सब जगह घर बन गए। मतलब क्योंकि यहाँ का सॉल्ट का काम बहुत सालों पहले खत्म हो गया, और उसके बाद भी बस्तियां बन गई है, तो इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग। और दूसरा, आपने जो देवनार की बात की, देवनार का जो विषय है ये बहुत आगे का है, क्योंकि देवनार में पहले कैपिंग होगा। देखिए, आज मैं आपको नागपुर का उदाहरण देता हूँ। नागपुर में सिम्बियोसिस का अगर आप कैंपस जाकर देखेंगे तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस मेड बाय सिम्बियोसिस इन नागपुर। ये जगह कौन सी थी? ये हमारा डंप प्लांट था नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जिसका टोटल कैपिंग करके उस जगह को हमने रिक्लेम किया, बायोमाइनिंग करके रिक्लेम किया। आज वहां पर आप सिम्बियोसिस बन रहा है, वही नरसी मुंजी बाजू में बन रहा है, सारा वो एजुकेशन जोन बन गया। तो इसी प्रकार से ये जो डंप यार्ड है देवनार का, अब हमको चूंकि आवर रूल्स डू नॉट परमिट कि हम लोग डंप करें, हमको तो उसके ऊपर अब
पूरा प्रोसेसिंग करना है, तो ये जो एक लीगेसी डंप है, इस लीगेसी डंप को कैप करके, इस लीगेसी डंप का बायो माइनिंग करके, इसको पूरे तरीके से लैंड को रिक्लेम करके और फिर उसके ऊपर ये सारी चीजें बनानी है. How long will that take? इट टेक्स 3 to 4 years. बट इसीलिए मैंने कहा कि सी It's a long process. one piece. ये जो प्रोजेक्ट है जनरेशनल प्रोजेक्ट है, 7 साल का प्रोजेक्ट है. Correct. सो आपको सारी जमीन आज नहीं लगने Correct. वाली है. But why are we in Bombay struggling with waste so much? Other cities, Maharashtra, they've figured it out. Like your Pimpri Chinchwad doesn't have it. We are not treating our sewage the way we're supposed to. I've been hearing for years we're going to treat our sewage, not getting it treated. We don't segregate our waste. Everything goes into a landfill. We don't know where to dump the waste. So waste as an issue in Bombay particularly has been a problem, right? मुझे ये पता नहीं कि हम लोग इनमें से कई चीजें क्यों नहीं कर पाए, पर आपकी एक बात सही है कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना उस समय मेरे ध्यान में आया कि मुंबई में हम लोग जो सीवेज है उसमें मोस्ट ऑफ द सीवेज अंग्रेजों के बनाए हुए सेटलिंग टैंक्स में सेटल होता है और पानी चला जाता है समुद्र में. इट इज़ एज गुड एज डिस्चार्जिंग योर सीवेज इन द सी. इसलिए हमारा सी इतना स्टिंग करता है. तो उस समय फिर मैंने तय किया कि नहीं, ये पूरा नया सिस्टम बनना चाहिए. मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई बार हम जो सोचते हैं उसको समय क्यों लगता है. तो उसके बाद ये ध्यान में आया कि हमारे देश में सी में डिस्चार्ज किस क्वालिटी का वाटर हो, इसके नॉर्म्स ही नहीं थे. फिर पहले वो नॉर्म्स मैंने तैयार किए. वो नॉर्म्स तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया. सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मान्यता दी. मान्यता देने के बाद कुछ लोग ग्रीन ट्राइब्यूनल में गए. ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उसके ऊपर स्टे दिया. मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि एक ग्रीन ट्राइब्यूनल का एक कन्वेंशन पूना में हुआ जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे. मैंने सबके सामने वहाँ बोला कि आप लोग ये कहते हो कि सस्टेनेबिलिटी लानी है, सब लाना है, अब हम यहाँ पर एसटीपी तैयार करना चाहते हैं, हमने नॉर्म्स तैयार किए, हमारे गलत है तो आप नॉर्म्स दीजिए, लेकिन आप स्टे देकर बैठे हुए हो. तो फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट टुक द कॉग्निजेंस और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उसको रिलीज किया और वो नॉर्म्स बने और अब हमारे सारे एसटीपीज तैयार हुए. होपफुली अगले 2 साल में पहला एसटीपी होगा. उसके बाद 4 महीने में sewage treatment प्लांट्स. तो मुंबई का सारा सीवेज ट्रीट करने की कैपेसिटी हम लोगों ने तैयार करी जो अगले 3 सालों में पूरी हो जाएगी. उसके बाद मुंबई का सीवेज वाटर सी में नहीं जाएगा. तो कम से कम हमारे चौपाटी पर जाने के बाद जो एक दुर्गंध हमको दिखाई पड़ती है, जो गंदगी दिखाई पड़ती है, वो सारी गंदगी समाप्त हो जाएगी. इसी प्रकार से हमारे कचरे के बारे में भी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जानता, लेकिन बीएमसी एक बहुत केपेबल और फाइनेंशियली बहुत केपेबल इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जितना बीएमसी ने करना चाहिए था नहीं किया. लेकिन अब करीब करीब सारे प्रकार के जो इंटरवेंशन है वो किए हुए हैं. आपको पता है ये इंटरवेंशन जब हम लोग शुरू करते हैं उसके बाद 5 साल लगते हैं. तो ये और अभी 2 इंटरवेंशन नए शुरू करेंगे जिसको और 3 साल लगेंगे. तो मुंबई का सारा कचरा जो है ये प्रोसेसिंग के लिए मैं ऐसा मानता हूँ 100% हम 70-80% तक तो पहुंच जाएंगे. 100% तक हमको और 4 साल लगेंगे. Devendra ji, I've got more questions. We are running out of time, and I want to get some audience questions. I want to do a rapid fire also with you. So I'll just try to just one quick one, unrelated really, but I got Eknath Shinde when he was chief minister. Eknath Shinde ji को मैंने लोक सत्ता के event पे मिला था, and I got him on stage and on camera to commit that he is not going to build anything on the Mumbai turf club, which has now been taken over. Will you stand by that commitment? 100%. देखिए वहां पर हमको सिर्फ गार्डन तैयार करना है. और कोस्टल रोड के समय तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एफिडेविट दिया है कि कोस्टल रोड के कारण जो रिक्लेम लैंड नहीं तैयार होगी उसके ऊपर 1 इंच भी हम रियल एस्टेट तैयार नहीं करेंगे. वह ओनली ग्रीन स्पेस हम तैयार करेंगे और उसी शर्त पर हमको वो जगह मिली है. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोस्टल रोड और हमारा जो कोस्टल रोड और रेस कोर्स, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक स्पेस ऑफ मुंबई, पब्लिक गार्डन ऑफ मुंबई. So we'll never see buildings coming up on No, the not at coastal all. road. We'll never see सवाल ही buildings नहीं coming on the turf club. Never बिल्कुल happen. And the reason we're all skeptical is because environment doesn't seem to be an election issue in India and Maharashtra, just far from it. So बात आपकी सही है, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत
लंबे समय तक ये रहेगा क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है और विशेष रूप से आई थिंक द न्यू जनरेशन जो अभी 18 साल की होते जा रही है, जो अगले 5-7 सालों में वोटर बनेगी, उनके लिए एनवायरनमेंट ये इशू है. दे आर मोर अवेयर अबाउट एनवायरनमेंट. तो आज शायद वो कंसर्न है लेकिन इशू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इशू भी बनेगा. Okay, wonderful. Okay, so we're going to play a quick rapid fire, and Devendraji, please have fun with it. The idea is to kind of make you have some, is to make it a fun game, not this thing. Identity or welfare, from when you started your career in politics to now, which of these two issues has increased in effectiveness as an election tool? Welfare. Okay. One thing Mumbai should learn from Delhi, one thing Delhi should learn from Mumbai. There are 10 things Delhi should learn from Mumbai. And I don't see a single thing which Mumbai can learn from Delhi. Anyways, it's my love about Mumbai. But मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई का जो अनुशासन है वो दिल्ली सीख सकती है. आज भी मुंबई में शाम के समय इस किसी भी एरिया में आप देखिए, लोग लाइन में लगकर टैक्सी पकड़ते हैं, लाइन में लगकर बस पकड़ते हैं. मुंबई का ट्रैफिक आज भी आप देखिए बहुत कम लेन जंपिंग होता है. दिल्ली में बिना ठुकी गाड़ी दिखा दीजिए. Very true, very true. But Devendraji, you brought this up. हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं मेट्रो रोड, और सब लोग ये पूछे कि और बस क्यों नहीं डालते हम शहर में. अनफॉर्चुनेटली इतनी बसेस का ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन उसका एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि चूंकि हम सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, You wanted e-buses. हम ई बसेस चाहते हैं. हम लोगों ने 10,000 ई बसेस का ऑर्डर दिया हुआ है. And that money came from National Clean Air हाँ, Program. वहाँ से भी आया है, हमने भी दिया हुआ है. बट उसका जो सप्लाई है उसकी स्पीड कम है. हमको महीने को कम बसेस मिल रही है. अभी 200 बसेस मिली है, लेकिन अभी जो सप्लायर्स है उन्होंने कहा है कि नाउ द बॉटल नेक्स आर ओवर और हम उसको फास्ट करेंगे. सो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आपका कहना सही है, अगर हम किसी भी ग्लोबल सिटी से कंपेयर करें तो सबसे कम बसेस मुंबई में. Correct. And population density is very high. Devendraji, all these things we're talking about, it's going to cost money, and we keep hearing that state finances are in a problem. Is that right, or is that? वो तो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं. इसका मतलब वो तो प्रॉब्लम रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली हमारी जो अभी अर्थव्यवस्था है वो इस प्रकार की है कि आपके पास अगर कोई भी वायबल प्रपोजल है, बैंकेबल Standalone. प्रपोजल है, तो उसके लिए आपके पास फाइनेंस है. आपको कोई बैंक केवल बांटने के लिए पैसा नहीं देगी, ओनली वेलफेयर. Correct. उसके लिए तो आपको आपके बजट से ही पैसा खर्चा करना पड़ेगा. बट आप देखिए, अब करीब करीब मैं ऐसा मानता हूँ कि रिसेंटली हम लोगों ने ये तय किया था कि हम $100 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, और उसके लिए हम बैंकों से डील करेंगे. हमको इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने $50 बिलियन का डील हमारे साथ किया है. अब $50 बिलियन का डील हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन से करेंगे. Wonderful. The last time you did something you knew was populist but fiscally irresponsible. Many things. There a pass? Okay, I won't push. Okay. The one strategic advantage Maharashtra has over Gujarat for getting foreign investment. So I think, you see, if you look historically, Maharashtra has always been the leader in getting FDI. Even if you look at the last 3 quarters, Maharashtra is number 1. And there have been years where, the investment of Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu and Delhi put together, Maharashtra was higher. So I think people's confidence in Maharashtra is there, especially the international investors. They have a lot of confidence in Maharashtra. And historically, you have seen that Maharashtra has performed.
So people have a lot of faith in Maharashtra. I don't see there's any problem. The one strategic advantage Gujarat has over Maharashtra for getting foreign investment. See, Gujarat has created a brand image. हम लोगों ने इसको मान्य तो करना ही चाहिए कि Correct. एक ब्रांड गुजरात उन्होंने तैयार किया तो उसका उनको फायदा मिलता है. ठीक है, okay. The one thing you admire about Sharad Pawar. No, I admire many things. और बहुत सी ऐसी चीजें कि जो नहीं करनी चाहिए उन्होंने, ऐसा भी मुझे लगता है. बट एक चीज जो शरद पवार जी में है वो उनकी कंसिस्टेंसी. देखिए, पॉलिटिक्स में वो एक ऐसा व्यक्ति है, चाहे हारे चाहे जीते, किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो काम करते रहते हैं. एट दिस एज ऑल्सो वो जितना काम करते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है. तो ये जो एक कंसिस्टेंसी उनमें है वो बहुत जबरदस्त है. Okay. If you were asked to nominate one member from Maharashtra's opposition to travel abroad and represent India's perspective, aside from Supriya Sule, who would you pick? सबको भेज दूंगा और साथ में एक और आदमी भेजूंगा जो बात करेगा. ये सब खड़े रहेंगे. Okay. Which opposition CM's opinion do you value most? Prithviraj Chauhan, Uddhav Thackeray, Sharad Pawar, Ashok Chauhan, Narayan Rane और सुशील कुमार शिंदे? देखिए, आई वुड से कि इनमें से हर व्यक्ति ने कोई ना कोई अच्छी चीज़ महाराष्ट्र में की है और इनके क्रेडिट में महाराष्ट्र के विकास की कई चीज़ें जाती है. तो इनमें से कोई भी अगर मुझे ओपिनियन देगा और वो ठीक होगा तो मैं मानूंगा. विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि शरद पवार जी का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, मैं उनकी चीज़ मान सकता हूँ. नारायण राणे जी का एक अपना एक काम करने का स्टाइल था. आपने देखा होगा कि कम समय नारायण राणे जी रहे, Correct. लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे जो उनकी पकड़ थी वो बहुत मजबूत थी. पृथ्वीराज चौहान जी को चीज़ों का आकलन बहुत ज़बरदस्त है. आई मीन ही अंडरस्टैंड्स द थिंग. वो उनको एक डीप नॉलेज Correct. उनमें दिखाई पड़ता है. तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने Okay. के पास कुछ ना कुछ है. Okay, so it's a rapid fire. I'm getting people looking at me for time, so I'm going to try to make you. I'm going a little faster if you can. The political rival you enjoyed becoming friends with most: Ajit Pawar, Chhagan Bhujbal, or Ashok Chauhan? अजीत पवार. Okay. The last, which of these four air pollution sources ये is? बाकी दोनों के साथ बहुत आसानी से हो गया. Okay, Sanjay Rathod, Chhagan Bhujbal, Hassan Mushrif, and Ajit Pawar. These are four names you have publicly pointed fingers at. Who of these have reformed the most? वो रिफॉर्म होने के बाद ही मेरे साथ आए. Acha. Okay. Which of these four air pollution sources is easiest to fix? Garbage burning, construction dust, thermal power plants, or vehicular pollution? I think none. All of them are very difficult to. Okay. But I mean, there are solutions for everything, but all of them are very difficult to fix. Okay. Do you want residential prices in Mumbai to go up or to drop? They should go down. However, I mean, Because most people's savings go into their homes. So yeah, then, you are absolutely right. So when we constructed this coastal road, we thought that since we are creating connectivity, the prices this side will go down, but they have doubled. So I mean, it's a absolutely different economics in Mumbai. True. Now I am hopeful that since we are creating a new Mumbai in Naina area, we'll be able to make some affordable housing there. Okay. Mumbai or Nagpur, where do you feel more at home? Of course, Nagpur. Mumbai or Delhi, which is your preferred second home? Mumbai. The South, the Hindi heartland, Nagpur or Mumbai, where do you think BJP's next party president will come from? Oh my God. It can come from anywhere. Okay. Bureaucrats or ministers, whose advice do you trust first? I mean, it depends because there are certain times when bureaucrats have, more technical knowledge and they understand the finances. So their advice is right. But there are times when
ministers have real ground touch. They know the reality because they are from the people. So their perspective is also absolutely correct. So you have to balance. We play a quick game. One more game. Ajit ji or Eknath ji, because of this question. Ajit ji or Eknath ji, who do you think is better at communicating? Let me tell you frankly, they should forgive me. Both are not communicative. Okay. Okay. Ajit ji or Eknath ji, who is better at managing natural calamities? I think Eknath ji loves to manage or to enter into such situations. So Okay, that's your answer. yeah, Ajit ji, Eknath ji, who is better at local body elections? BJP. Okay. Ajit ji, Eknath ji, who is better at infra and tendering processes? So I think I mean they don't do the tendering processes, but on infra. All of us are together. I mean, we feel that we require a lot of infra. We require infra push, and we require to create infra at a great speed. Correct. So I think there is a unanimity. Okay, so Ajit ji, Eknath ji, whose advice would you take on dealing with the following issues? Difference of opinion with the party high command. None, because I know my party high command. They don't know. Whose advice would you take on resolving disputes with the central government? Again, I know better about the central government than Okay. them. Okay, you have to drive to Delhi and you have to pick one person in the passenger seat. You've got two options, Savarkar or Gandhi. Who do you pick? गाड़ी कौन सी है? आपकी preferred SUV. ये फास्ट गाड़ी होगी ना तो सावरकर जी को ले जाऊंगा. अगर अपनी नॉर्मल स्लो गाड़ी होगी तो गांधी जी को ले जाऊंगा. Fantastic. Okay. Dinesh ji, thank you so much for playing. You've been a great sport. We have a few quick audience questions I'll take if I can get the mic here. Is Radha around here? Can we get a question from Radha? Yeah. Can we get a show of hands? Let me see. I don't have much time. I know. Yeah. Go ahead. Thank you, Devendra ji, for this. So my question is more for Bombay. Maybe I'm from Bombay, so it's to do with the environment. Bombay's AQI has improved, but it's still a concern for all of us. And you mentioned that reviving anything with a city like Bombay is difficult. So three parts to this. One is that two assets we have, Mithi River and mangroves. Two that, are not probably restored enough, not protected enough. And third is about an opportunity, which is the coastal road. And you mentioned that it's going to be trees primarily, but it's an opportunity to make it largely trees. And even if it's 80% native trees, it could really change the environment. So, I totally agree with you that first of all, on the coastal road, there have to be native trees because they are best to grow and they'll create a great ecosystem. You said about Mithi, and I totally agree with you because I think if we could, rejuvenate and if we could actually, do something to Mithi, that will change the entire environment. So that is already we have started. I think we have seriously started because we have been saying this for 25 years that we will, 2005 flood was caused by yes, the yes, yes, Mithi yes. So हम लोग मिट्टी को ठीक करेंगे अगर हम ये बोलते रहे, बट अभी रियल एक्शन वी हैव स्टार्टेड. सो मुझे लगता है, और मुंबई का सबसे बड़ा मैं ऐसा कहता हूँ एडवांटेज ये है कि जो हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो शायद ही किसी इतने बड़े शहर को अवेलेबल है. तो इन सब चीज़ों को कंजर्व करना पड़ेगा, इनको इंक्रीज करना पड़ेगा और वो हम करेंगे. Okay, we'll take two questions back to back. Jitu, one, and Pratik Agarwal, second, please. Yeah. Mike, Pratik. Yeah. Devendra ji, thank you. I really enjoyed your thing on how you're transforming Mumbai and also the whole technology focus. I moved back from Singapore 10 years ago. My office is in Nariman Point, and that is a big problem. Outside Status Restaurant, you see parking mafia, 4 levels of parking. It takes me 20 minutes to go 200 meters. It's a small request. Please help and please solve that problem. Your request has traveled to me through the ears of police commissioner. He is sitting in front of you. So now it will be solved. Pratik.
So I echo everybody's thoughts on what you've done for Mumbai. It's truly transformative. We love living here. So I have a question not to do with Mumbai. We're in the wind industry, wind renewables, and Maharashtra has huge potential for wind power, as you know. And a lot of us developers have been facing issues in the east of Maharashtra, Sholapur, Beed, etc. Your office has really helped in the last 1 month to solve it, but we hope that more can be done because there's huge potential for wind so in that area. I totally agree with you because renewable energy has been a very important topic on which our government is working, has been working, and I must tell you that now with our plans by 2030, our 52% energy will come from renewable sources. And he has rightly said that in Maharashtra, the wind and solar, those who are in the company, those who are doing wind and solar, they have been facing a lot of problems, especially due to local mafia. But now we have actually tightened all the things, and I have told police that anybody troubles and just apply the strictest section on them और उसको तड़ीपार कर दो, ऐसा बोला है. इसलिए अभी अब प्रॉब्लम मैक्सिमम खत्म हो गया. फिर भी कई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बताइए, हम उस पर मदद करेंगे.